बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सीरीज सोल्यूशन मेथड के कुछ और एग्जांपल अगर हम देख लें, लेट सपोज प्रॉब्लम नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सीरीज सोल्यूशन मेथड। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय dy by dx is equal to 1 minus x square and the initial condition is given y of 0 is equal to 0, mean to say that at x equal to 0 y is equal to 0. Again, consider the solution of the form of the series y of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x4 plus a5x5 and up to so on. And the first derivative of this series dy by dx is equal to derivative of a naught is 0 because a naught is constant, plus a1x derivative of a1x is just a1 because a1 is the constant and the derivative of x is 1. a2 is constant, derivative of x square is 2x, so 2a2x plus 3a3x square plus 4a4x cube. This is the derivative of equation number 2. Putting the value of dy by dx in this equation, we get a1 plus 2a2x plus up to so on. This is the left hand side, and on the right hand side we have 1 minus x square. To find the value of a naught, I told you before that the first coefficient a naught can be obtained by using the initial condition in this series. So just put y x equal to 0 and y is equal to 0 in this series. On the left hand side y is equal to 0, so left hand side पे 0 आ जाएगा, and on the right hand side a naught plus a1x plus a2x square. ए नाट के अलावा बाकी हर एक टर्म के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो राइट साइड पे जस्ट ए नाट की वैल्यू रह जाएगी और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे 0. सो ए नाट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे जो लिखते हैं कि एंड इनिशियल कंडीशन यील्ड्स ए नाट इज इक्वल टू 0. सो एक्चुअली यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है ये इक्वेशन 2 में उसने अप्लाई किया हुआ है और इससे हमें ए नाट इज इक्वल टू 0 मिल रहा है. To find the other constant a1, a2, compare the coefficient of the like power in this equation number 3. So first of all अगर हम constant को compare करेंगे तो left side पे constant ये a1 है, बाकी कोई constant इसमें नहीं है, और right side पे constant 1 है. So a1 is equal to 1. We get direct the value of a1 which is equal to 1. Similarly, compare the coefficient of x. यहाँ पे coefficient of x 2a2 है, यहाँ पे coefficient of x minus 1 है. So 2a2 is equal to minus 1, or it implies that a2 is equal to minus 1 by 2. Coefficient of x square is 3a3 and the coefficient of x square on the right hand side is minus 1. So 3a3 is equal to minus 1, or a3 is equal to minus 1 by 3. एक्स क्यूब का कोफिशेंट अगर आप देखें तो एक्स क्यूब का कोफिशेंट यहाँ पे 4a4 है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है. एक्स क्यूब का कोफिशेंट 0 है, सो 4a4 इज इक्वल टू 0, और इट एम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली x4 का x5 का कोफिशेंट यहाँ पे 5 है, a5 है x4 का कोफिशेंट, लेकिन यहाँ पे x4 का कोफिशेंट 0 है. सो बाकी जितने भी ऑनवर्ड जो कांस्टेंट है वो सारे इसकी वैल्यू 0 आती है. So just plug the value of a naught, a1, a2, a3 and up to so on in this series solution जो आपने solution consider किया हुआ है equation number 2 में. a naught की value, so यहाँ पे अगर आप देखें तो a naught which is 0 plus a1x, a1 is 1, so ये 1x बनेगा, plus a2x square, a2 is minus 1 by 2 into x square, plus a3x cube, a3 is minus 1 by 3 into x cube, plus up to so on, बाकी सारे constant 0 है. So we get the solution y of x is equal to x minus 1 by 2 x square minus 1 by 3 x cube. This is the solution of the given differential equation. Similarly, एक और प्रॉब्लम अगर हम देख लें, प्रॉब्लम नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सीरीज सोल्यूशन मेथड. dy by dx is equal to minus y is equal to 0 and the initial condition is given by y of 0 is equal to 1. Again y of x, अगर suppose करें solution in the form of this series y of x is equal to a naught plus a1x plus up to so on. इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, dy by dx फाइंड करें तो dy by dx इसका जो है a1 plus 2a2, I'm sorry, सो इसका डेरिवेटिव जो है a1 plus 2a2x plus 3a3x square plus up to so on. This is dy by dx and this is y.
put the value of dy by dx and the value of y in this differential equation, we get y के वैल्यू जो है ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और dy by dx की ये जो वैल्यू है ये पुट करें। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया है a1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज dy by dx माइनस y, और ये जो है ब्रैकेट में जो आपको नजर है दिस इज माइनस y की वैल्यू है और राइट साइड पे 0। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आपको नजर आ रहा है इसमें जस्ट कांस्टेंट टर्म को सेपरेट लिखा है, फिर x के टर्म को जो है उसने सेपरेट लिखा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेपरेट लिखा है। दिस इज़ जस्ट फॉर मैथमेटिकल रीज़न कि हम फिर जो लाइक पावर को के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं उसमें आसानी होगी। सो यहाँ पे a1 माइनस a0 प्लस ये जो टर्म है x का और ये जो x का टर्म है इसमें से x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2a2 माइनस a1 और x कॉमन लिया है। सिमिलरली x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 3a3 माइनस a2, ये माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस x cube 4a4 minus a3 into x4 and plus up to so on, and on the right hand side we have 0, so this is equal to 0. Now initial condition again, and initial condition yields a naught is equal to 1. अब यहाँ पे a naught is equal to 1 आ रहा है, initial condition आप यहाँ पे प्लग करें y of 0 is equal to 1, mean to say that at x equal to 0 y is equal to 1. सो y जो है 1 पुट करें इस इक्वेशन में और x को 0 पुट कर दें। सो y यहाँ पे 1 पुट करें तो ये लेफ्ट साइड पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे a0 प्लस a1x, तो ये हर एक टर्म के साथ x मल्टीप्लाई तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। वी विल लेफ्ट ओनली विद a0, सो a0 इज इक्वल टू राइट साइड पे y है, y की वैल्यू 1, सो a0 इज इक्वल टू 1 इस तरह आ रहा है। और अब इस जो इक्वेशन, ये जो लास्ट में इक्वेशन है इससे अब कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर को कंपेयर करें। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a1 माइनस a0 है, राइट साइड पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो a1 माइनस a0 इज इक्वल टू 0 और इट एम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू a0 एंड द वैल्यू ऑफ a0 फाइंड कर चुके हैं, ये 1 है, सो a1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें 2a2 माइनस a1, राइट साइड पे x का कोई x का टर्म नहीं है, सो यहाँ पे 0 है, इट मीन्स दैट 2a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0। a1 दूसरे साइड पे ले जाएं तो 2a2 इज इक्वल टू a1 और 2 पे डिवाइड करें तो a2 बनेगा, a2 इज इक्वल टू 1/2 a1 और a1 की वैल्यू ऊपर स्टेप से अपने फाइंड किया हुआ ऊपर स्टेप में यहाँ पे पुट करें, वी गेट 1/2, so a2 is equal to 1/2 and similarly 3a3 minus a2 is equal to 0, so ये a3 हो जाएगा a2/3, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू ऊपर 1 और 2 अपने फाइंड किया हुआ, ये 1 और 6 बनेगा एंड 1 और 6 कैन बी रिटन एज 1 और 3 फैक्टोरियल एंड सिमिलरली द रेस्ट 1, a4 जो है 1 और 24 बनेगा, 24 इज द फैक्टोरियल ऑफ 4। नेक्स्ट a5 अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो जो है 1 और 5 फैक्टोरियल बनेंगे एंड अप टू सो ऑन। प्लग ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम a0 टू अप टू सो ऑन a4 a5, ये आप सोल्यूशन जो आपने सपोज किया है यहाँ पे इसको पुट करें तो आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा। इस इक्वेशन में आप सीरीज में पुट करें वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट, सो y इज इक्वल टू a0 इज 1 प्लस 1x a1x, सो a1 1 है, प्लस a2x स्क्वायर, a2 1 और 2 फैक्टोरियल है, प्लस a3 1 और 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब, तो ये जो है आपके पास प्लस अप टू सो ऑन, नेक्स्ट टर्म 1 और 5 फैक्टोरियल x5 प्लस 1 और 6 फैक्टोरियल x6। तो ये अगर आप देखें दिस सीरीज इज जस्ट द टेलर सीरीज ऑफ e टू द पावर x, यानी ये एक्चुअली क्या है e टू द पावर x है। आप इसको इसी तरह भी जोड़ सकते हैं या ये जो है नाइस तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो दिस इज द सीरीज ऑफ e टू द पावर x, सो y ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो इस तरह जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो will helpful for you to